Good morning, friends. Welcome to my channel. Today I am really in a very good mood. Let me tell you one thing is that it's a request to the females, क्योंकि जो टैरो में जाते हैं ना वो 99% females ही होते हैं. To know about their ex, are they coming back? Why has they blocked me? Why are they not speaking to me? Why are there fights? Is he going with another woman? एस्ट्रोलॉजी का सहारा लेंगे, रेखी का सहारा इसका लेंगे, क्रिस्टल ग्रेजिंग का लेंगे, टैरो रीडिंग का लेंगे, पामिस्ट्री का लेंगे. फिर जनरली वो टैरो रीडिंग का ही लेंगे, कार्ड एंजल रीडिंग का लेंगे और स्पेल्स करेंगे और ये सब चोचलेबाजी करते रहेंगे. ठीक है, अपने दिल को दिलासा देने के लिए एट दैट शॉर्ट टाइम ये सब किया, फिर भी ये लोगों में एडिक्शन होता है. If a person, let me tell you straightforward, if you are having a one night stand and you want that person has blocked you and you want to get in relationship with this person just to have sex, then it's a different question. And you are hankering after this person. There are people who are hankering after people who are, आई डोंट नो, इट्स नॉट इवन अ रिलेशनशिप. अब टैरो रीडिंग में वो हर चीज़ रिलेशनशिप ही ले लेंगे ना, सिचुएशनशिप पार्टनर है, सिचुएशनशिप को भी रिलेशनशिप ही ले लेंगे ना. तो वी आर नॉट वेरी क्लियर विथ whom we are hanging around, and then we are hankering after them with these love spells. I want to request ladies of all ages, वो करते हैं ये एंजल रीडिंग, टैरो रीडिंग, फिर वो मेडिटेशन, माइंडफुलनेस, देन चैंटिंग लव स्पेल्स, मेडिटेशन, ऐसे से वेलागिरी करना बंद कर दो. 15 signs is thinking about you. He doesn't have to think about you. He can just pick the phone and speak to you. And if the relationship is over, it must be having number of reasons why it's over. It cannot be just one reason. And relationship mein, if a person is ghosting you or ending the relationship without taking your consent, means there has to be lack of compatibility or lack of chemistry, or there could be hundreds of various reasons for it. Or maybe the statuses are not matching, there is no wavelength, so many things. To stop hankering behind these stupid love gurus, love coaches, relationship coaches. I've seen there are guys who guide women on how to bag a man, patao a man, how to get a man. Why do I need another man to tell me how to patao another man? Like, he'll give me tricks and trips. I think Brian Knox, Matthew Hussey, these are some few names which are coming into my head. और मैं सोच रही थी कि oh, he's using me, 10 signs he's using you. I sometimes, even if he's using us, na, we want to be used, we women. If a man is good looking and he's vela and we are paying for all his food, clothing, shelter, he's using us, definitely we don't mind being used, because probably he might be good in bed, so we are paying for his services. So he's our Rakhel. Sorry, but I'm being very direct कि don't fall for such things. ये हमारा खुद का एक ब्रेन होना चाहिए, खुद की एक थिंकिंग पावर होनी चाहिए कि what do I need from a man? I need a man to provide for me, protect me and to preserve me. मतलब peace, all these things, prosperity, he should get me all those things. I'm also getting something on the table, and then he's also getting, 90% of the time he should be getting on the table all those things. Of course, that's what a man should be for, right? तो वरना क्या है फिर, वो क्या मैनिकिन है क्या डिस्प्ले पर्पस के लिए? Please, females, don't run behind men where you have to be paying for him. We have to pay. I remember when people say let the man pay, let him take me to the 5-star. मैंने बोला नहीं, ये चोचलेपना बंद कर दो. Oh, I'm so high maintenance. It's idioticness. Your value doesn't come from which restaurant you eat. Stop it hankering for those idiotic gifts. मैंने बोला once you are breaking up ना, वो gifts भी एक तकलीफ. You don't know how to discard them. You will be so bugged, you don't know what to do, because some of them will be expensive. You want to keep them, but at the same time it will remind you of those people. Have authentic relationship based on trust and love and affection. मैंने बोला वो मुझे गिफ्ट्स बोझ की तरह लगते हैं. आई एम टेलिंग यू वेरी क्लियरली, व्हाट इफ देयर इज, इफ इट्स नॉट अ सॉलिड रिलेशनशिप एंड ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम इट ब्रेक्स अप, देन फिर उसको फोन करो, देन टेक योर गिफ्ट्स बैक, गिव मी माय गिफ्ट्स बैक. गिफ्ट्स हैव टू बी मीनिंगफुल.
अगर वो तुम्हें फ़ोन देता है 24 घंटे मैंने तुम्हें फ़ोन दिया तो तुम्हारा फ़ोन चेक करता रहता, तुझे अच्छा लगेगा ये? सो लर्न टू बी इंडिपेंडेंट, यू नो. मैंने बोला आई डोंट नीड अ मैन टू टेक मी टू 5 स्टार. आई हैव गॉन विद माई ओन मनी. आई वॉज अ पर्सन हु लव्ड फाइन डाइनिंग. मैं खुद ही जाती थी डिनर करने के लिए. आई लव्ड शॉपिंग बाय माई सेल्फ. आई डोंट नीड अ मैन टू कम एंड स्पेंड ऑन मी कि ये चाहिए ये खरीदूँ. मैंने बोला नहीं, मैंने अपना खरीद लिया और मुझे खरीदी की इतना खास ये नहीं है कि हैंकरिंग कोई फुकट का दे रहा है तो ले लो, कचरा जमा कर लो अपने घर में गिफ्ट. मैंने बोला नहीं, अगर थॉटफुल गिफ्ट है तो समझ सकती हूँ मैं कुछ. आई सेड हाई, व्हाई डिडंट ही टेक यू हियर एंड व्हाई डिडंट ही टेक यू. आई सेड आई एम नॉट वेरी मच एन ईटिंग पर्सन. आउटसाइड खाना मुझे इतना खास आजकल पसंद नहीं है, पहले पसंद होता था. पहले तो मैं ऐसे ही आई माइट हैव हंगर ऑन टू सी सम गुड नाइस प्लेसेस टू ईट. सो वुमेन को ना ये बहुत बुरी टिप्स देते हैं कि हाई मेंटेनेंस बनो, लो मेंटेनेंस भी मत बनो. अगर तुम्हें कोई रबिश गिफ्ट देता है ना, उनको देखना नहीं, बोलना चाहिए क्या मुझे ज़रूरत थी क्या. बट एनी वे सिंस यू हैव गिवन मी, वी आर थॉट टू हैंकर बिहाइंड थिंग्स. मत करो ये सारी चीज़ें. Relationship should be very authentic, in the sense he has a life of his own and you have a life of his own, and you are in a mutual partnership, beneficial partnership, कि हम एक दूसरे की चीज़ों को एनहेंस कर रहे हैं, स्टेटस, रेपुटेशन, प्रोडक्टिविटी को. ये छोटी मोटी चीज़ों में वाई डिडंट ही टेक यू देयर, वाई डिडंट ही गिफ्ट यू, वाई. मैंने बोला प्लीज़ यार, मुझे आई कैन नॉट थिंक इन दोज लाइन्स, आई कैन नॉट. और मुझे ज़बरदस्ती कोई डिनर बोलता है, मैं सोचती हूँ डिनर पे जाना है कि नहीं, बिकॉज आई हैव माई डिनर एट 8 o'clock. एनीथिंग लेटर 8:30, एनीथिंग लेटर देन दैट इट बिकम्स वेरी स्लगिश एंड इरिटेटिंग. मैं तो खुद ही बोलती हूँ प्लीज़ यार बाई 7:30, 8 बजे अगर मैं बाहर जाती हूँ, माई डिनर आई नीड टू गो एट अराउंड 7 o'clock आउट. बाई 8 o'clock द फूड इज़ ऑन द टेबल, आई एम ईटिंग इट. फिर बाद में हम लोग जाएंगे ड्राइव पे या कुछ तो. ऐसे आई एम नॉट रियली फॉन्ड ऑफ. और चाइनीज़ में भी मुझे पर्टिकुलरली 2-4 चीज़ें बहुत अच्छी लगती है. दैट्स नॉट अ वेरी. सो स्टॉप गोइंग इन फॉर सच थिंग्स. व्हाई आई एम टेलिंग दिस फॉर माई टू द लेडीज़, बिकॉज ये मैंने देखा हुआ है अपने पर्सनल लाइफ में कैसे एंजल रीडिंग्स, कार्ड रीडिंग्स के पीछे, नो वंडर ऑल दीज टैरो रीडिंग फीमेल्स आर मेकिंग सो मच ऑफ मनी, दिस मेन आर मेकिंग मनी. सन साइंस के पीछे, कंपैटिबिलिटी, न्यूमरोलॉजी के पीछे भागना बंद कर दो. एज ए सेड, मेरा और मेरे स्पेशल पर्सन का सन साइन एक ही है. दैट डजंट मीन कि आई एम हैंकरिंग बिहाइंड की, या काफ़ी सारी चीज़ें हमारी मैच करती है, बट दैट डजंट मीन कि, एज ए सेड, उसके फैक्टर्स भी काफ़ी सारे हैं. सेम काफ़ी सारी चीज़ें हैं, कम्युनिटी, सेम रिलीजन, सेम बैकग्राउंड, सेम ब्ला ब्ला ब्ला. दैट्स हाउ दैट कंपैटिबिलिटी इज देयर, नॉट बिकॉज वी आर ऑफ द सेम सन साइन. काफ़ी सारी चीज़ें. सो डोंट हैंकर बिहाइंड की ओ दिस सैजिटेरियस है, मैं जेमिनाइन हूँ, ऑल दिस शिटी नॉनसेंस. न्यूमरोलॉजी इज नंबर 9, आई एम नंबर 10. डोंट गो ऑन टू ऑल दीज थिंग्स. ये दिल बहलाने के चोचलेपना रहते हैं. Base your relationship on reality. What is he providing me? How authentic is this guy? How loyal, how committed is he? Can he stand by in bad days? Can he provide financial security? How much am I bringing to the table? What am I getting into the relationship? Am I providing him warmth, good ghar ka khana? Am I keeping my home clean? Is my partner helping me in household chores? Does he has any bad habits like drinking, smoking, watching sports, gambling, womanizing? Be clear about all this rather than sun signs and tarot reading. He's coming back, or universe is giving him back. 15 sign man is using you, 10 sign man likes you but he hides his feelings. मत करो ये सारी चीज़ें. That guy might like me but he's from a different caste, community, religion. वो कब तक चलेगा? ये लव मैरिजेस लास्ट नहीं करते हैं. आई एम नॉट सेइंग कि मत जाओ, किसी को तुम अच्छे लगते हो और वो दूसरी कास्ट का है, आई एम नॉट सेइंग कि मत करो, बट आइडियली हैंग अराउंड विद योर ओन कम्युनिटी एंड योर ओन रिलीजन. लव मैरिज भी करनी है तो हैंग अराउंड विद योर ओन कम्युनिटी, ओन रिलीजन, ओन सिटीजन्स, ओन कंट्री, ओन बैकग्राउंड के साथ. ऐसा भी नहीं कि पुअर
if the girl is poor it's okay, but if the guy is like एकदम poor, eventually he might do something, that's another thing. But status, अगर हम middle class है तो stick to middle class, better to, फिर वहाँ से we can pick it up. So लोग क्या करते हैं, they jump these class systems also. I'm being very open classist मैं बोल सकती हूँ. I'm telling you very biased हो आप, prejudice मैं मुंह पे बोलूँगी. ये गरीब अमीर का चक्कर is very very scary. It's very dicey. It's very delicate. एक तो rich people तो मुंह लगाते ही नहीं है lower middle class को. ये अपर मिडिल क्लास होते हैं, दे ओनली हैंग अराउंड विद अपर. अगर तुम उनके फैमिली में जाओगे ना तो मिसमैच रहता है काफ़ी हद तक. एक्चुअली फॉर अ गर्ल इट इज़ अ प्लस पॉइंट, क्योंकि तुम्हारी बैकग्राउंड से तो यू हैव टू बी वेल ग्रूम्ड फॉर इट. मैंने अपनी इमीडिएट फैमिली में देखा है, अपने ही कजन्स में, कि वो इनका बैकग्राउंड इतना ग्रेट नहीं रहता है, दे गो टू अपर मिडिल क्लास, अंडू ज़ीरो फ्लॉप, क्योंकि इनके पेरेंट्स इनको ट्रेन नहीं करते. वो भी वाहियात ऐसे चौल टाइप बिहेव होते हैं, हरकतें करते हैं. सो वहाँ पे बहुत सारा मिसमैच होता है. ये अपर मिडिल क्लास दे डोंट टॉलरेट ऑल दीज मैनरलेस बिहेवियर्स, ऐसा मैनर्स. और उनकी बातें सिर्फ पैसों में होती है, उनके स्टेटस में होते हैं. कुछ भी ऐसे बिहेव करो, कैसे भी, फिर इनकी लाइफ में बहुत प्रॉब्लम्स होती है अनलेस एंड अनटिल दे आर स्टेइंग सेपरेटली. सो प्लीज हैंग अराउंड कि तुम अगर मैं आई विल गिव यू एन एग्जाम्पल. अगर मैं 25,000 कमा रही हूँ एंड माई बॉयफ्रेंड इज कमाविंग अनदर 40,000, विच इज नॉट अ बैड थिंग. आई एम जस्ट गिविंग एन एग्जाम्पल. आई एम नॉट सेइंग दिस, आई एम नॉट जस्ट कोटिंग दिस एज अ रियल फिगर, बट आई एम जस्ट सेइंग गो इन फॉर अ गाय हु हैज गॉट सम डायनामिज्म, की ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम वो बोलेगा कि नहीं हमारा खुद का घर है. नॉट लुकिंग आउट हैंकरिंग फॉर अ मदर, ये इन लॉज की तरफ नहीं देख रहा है. लेडी डजंट रिस्पेक्ट अ मैन हु लिव्स ऑफ हर अर्निंग्स और हर पेरेंट्स, हर इन लॉज. सो मेन हैव अ स्पाइन. वो तुम्हें ज़्यादा गिफ्ट देंगे, वो जितना तुम्हें गिफ्ट देंगे मतलब उनकी बेटी इतनी रबिश है कि देन यू हैव टू पुट अप विद इट. ना वो तुमसे बच्चा पैदा करेगी, वो तुम्हारा हर दिन जहन्नुम बनाएगी, वो इतनी नास्टी रहेगी, हॉरेबल रहेगी. तो वो अगर तुम्हें फ्लैट गाड़ी या कुछ भी देंगी तो कितना मतलब वो कितनी खराब इरिटेटिंग कैरेक्टर है कि यू हैव टू झेलोफाई हर, काला पानी की तरह, सजा की तरह. सो डोंट गो आफ्टर कि इनके स्टेटस या इनके पैसे के पीछे. आई नो पर्सनली समबडी हु इज डूइंग दैट. इनकी लाइफ जहन्नुम होती है, ये नहीं खुश रहते हैं. फिर जस्ट बिकॉज दे आर गेटिंग दैट मनी, द स्टेटस, द एसेट्स, द प्रॉपर्टी, ये हैंग अराउंड करते हैं बस. फॉरेन ट्रिप्स मिलते हैं, फिर ये इनकी सासुरवाड़ी के साथ ही चिपके रहते हैं. मैन हु इज टू क्लोज टू हिज इन लॉज, उनके पीछे घुसा. हेल्पिंग देम, बीइंग अ सपोर्ट टू देम इज वन थिंग इंडिपेंडेंटली, बट उनके पीछे अगर तुम घुस जाते हो और उनके रिसोर्सेज यूज करते देन यू आर अ नौकर. वो तुम्हें बिल्कुल भी रिस्पेक्ट नहीं करेगी, तुम्हारी वाइफ तक रिस्पेक्ट नहीं करेगी. वो दिखाएगी नहीं, बट वो पैसे का पावर दिखाएगी ऑल द टाइम. सो एज अ मैन डोंट बी अ स्पाइनलेस विमेन, स्टैंड ऑन योर 2 feet. अगर तुम्हारा पास चौल है, यू टेल द फीमेल कि एट द मोमेंट आई कैन अफोर्ड दिस फ्रॉम ओवी, इवेंचुअली आई विल अर्न बेटर एंड आई विल पुट यू इन अ बेटर प्लेस. ओके, शो दैट डायनामिज्म, बट डोंट बी लाइक दिस भिखारी टाइप रनिंग बिहाइंड योर इन लॉज का पैसा. द वुमेन विल, 2 चाटे भी लगाओगी ना उस औरत को, वो सह लेगी, तुम्हारा मार सह लेगी. इफ यू आर अ डायनामिक मैन. मैंने बोला अगर मेरा शेर मुझे शेरनी को मारता है, आई टेक इट एज दैट. मुझे बोलना तो नहीं चाहिए, आई टेक इट, क्योंकि मेरे शेर में उतनी ताकत है कि वो अगर कुछ बोलता है तो वो करके दिखाता है. तो दैट वे अ वुमन विल रिस्पेक्ट दैट मैन, वरना वो अंडू उसको नौकर की पैर की जूती, डोरमैट की तरह यूज करेगी. Then don't these men are becoming simps these days? They're becoming like these beta males where they're like chutiya men. No wonder there is no respect for them. Be a protector, be a provider, be a alpha male. Be like, ऐसा नहीं कि ruthless and aggressive and sex machine कि मैं अभी 24 घंटे चोदने के बारे में ही सोचता हूँ. ऐसा नहीं होना चाहिए. Be a man, keep your word. हाँ मैं ये करूँगा, हाँ मैं ये दे रहा हूँ, हाँ मैं आई एम अ प्रोवाइडर ऑफ द हाउस, आई एम ब्रिंगिंग फूड इन द हाउस. मैं कमा के खिला रहा हूँ अपने बच्चों को, अपनी बीवी को, उनको अच्छी तरह से रख रहा हूँ. दैट शुड बी द दिस.
जो आजकल मैंने नहीं देखा, नो लेट मी डू माई थिंग, लेट हर डू हर थिंग, वो कमा के लेके आती है. अ वुमेन्स इनकम इज ऑलवेज शुड बी सप्लीमेंट्री फॉर हर सेल्फ और उसके बच्चों के लिए, वो कुछ ऊपर के खर्चे के लिए. मेन थिंग शुड बी द मैन ऑलवेज, एवरी टाइम, एंड ही शुड स्टैंड बाय हर, बाय हिज वुमेन. अगर वो गलत कर रही है, ही शुड टेल हर कि भाई तू चक चक करेगी तो देख लेना. हैव द बाउंड्रीज. आई एम बीइंग वेरी ऑनेस्ट अबाउट रिलेशनशिप्स. वो कैसे है, कैसे कैसे होने चाहिए. यू विल नॉट फाइंड ऑन एनी अदर चैनल. बोलेंगे क्यों मारा, क्यों मारा, मारा तो मारा. आई थिंक अ वुमेन शुड ऑल्सो हिट अ मैन बैक. मारो उसको भी मारो, rather than being मुझे क्यों मारा. वो मार रहा है ना, तू भी पकड़ कुछ स्टिक ले, मार उसको भी. तूने मुझे मारा, मैं तुझे मारूंगी, बट एंड ऑफ द डे वी आर इन अ रिलेशनशिप. कट्टी बट्टी हो गई है, तुझे गुस्सा आया, मुझे गुस्सा आया, उसको ड्रामेटाइज मत करो, अपने बीच में रखो, अपने बीच में निपटा दो. ओवर एक्टिंग मत करो उसका. तीर का पहाड़, तीर का ताड़ मत बनाओ, तिल का पहाड़ मत बनाओ. डिड आई सी द राइट थिंग? तो वैसे छोटी छोटी बातों को ना वहीं पे निपटा दो. कोई मारता है, ओ उसने मुझे मारा, थप्पड़ मारा, वो ऐसा है, इतना भी हल्का फुल्का नहीं होना चाहिए. मारा तो तू भी मार दे, मार पकड़ के. उसके लिए कोई डिवोर्स लेता है क्या? डोमेस्टिक वायलेंस. स्टूपिड इज दैट. निभाओ जितना होता है रिश्ता, unless and until that man is absolute loser and the lady is absolute and idiot, stupid, mad, crazy, or the man is a psychopath, then it's a different question. Chalo, I'll just wind up right now. Take care of yourself. Bye.